Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Welcome to the online class of our course BMB 3505 Molecular Biology. Molecular Biology offered in the Department of Microbiology 5th semester. And yesterday we have started our topic of recombinant DNA and medicine. And today we'll be going through all important points of this topic so that maximum topics are covered in the recorded lecture and students can use this as a reference for preparing in the examination. Now we have 29 students have joined us. Okay. So rapidly developing techniques in molecular biology are being used for research, medical diagnosis, and production of therapeutic proteins. They provide hope as a future therapy for diseases that are currently considered incurable. सो एडवांसमेंट्स हमेशा से होती रही हैं डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए एंड नाउ with the help of designing medicine at molecular level we are being able to nip the evil in the bud. So exactly what molecule, what enzyme, what nucleic acid, what amino acids, किस वे वो पर्टिकुलर हमारे पास डिसफंक्शनिंग हुई है उसको मॉलिक्यूलर मेडिसिन के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है. Restriction enzymes which cleave within short specific sequences of DNA can be used to obtain DNA fragments for study or for insertion into the DNA from other sources. The fusion product is known as chimeric or recombinant DNA. ज़्यादा फेमस नेम जो है वो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए का है एंड इसमें डिफरेंट डीएनए सेगमेंट्स को हम ज्वाइन करते हैं. Because DNA strands can be paired with complementary strands of DNA and RNA, a technique known as hybridization has been developed. Labeled DNA can be used as a probe to identify homologous or complementary sequences of DNA and RNA. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जिसमें डीएनए आरएनए बॉन्डिंग होती है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, इसकी मदद से हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को आपस में बेस पेयर करवा सकते हैं. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट्स द डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द साइज. ठीक है, एक मीडियम है जिसमें डीएनए पे जो कि ओवरऑल चार्ज होता है नेगेटिव. सो उस मीडियम में एक मैट्रिक्स ऐड की जाती है और उस मैट्रिक्स में डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल अक्रॉस द इलेक्ट्रिसिटी ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट. तो जहाँ जो जितना हैवियर डीएनए मॉलिक्यूल होगा वो उतना स्लोअर मूव करता है, जो जितना लाइटर डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो उतना फास्टर मूव करता है और ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज वो डीएनए फ्रैगमेंट्स आपस में सेपरेट हो जाते हैं. The nucleotide sequence of DNA can be determined and used to deduce the amino acid sequence of the protein produced from the DNA. जो कि हमें पता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोडॉन होता है और वो कोडॉन हमारे पास एक अमीनो एसिड को कोड करता है. मिसाल के तौर पर अगर हम जनरल कोडॉन की यूजेज की बात करें तो EUG हमारे पास मेथिओनिन को कोड कर रहा है. तो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है कि हमें डीएनए सीक्वेंस अगर पता चल जाए तो वहाँ से हम प्रोटीन सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. Large quantities of DNA can be produced by the polymerase chain reaction.
हमारे पास डीएनए को एम्प्लीफाई करने के मेथड्स में एक तो क्लोनिंग वेक्टर है, जिसको हमने कल वाली फिजिकल क्लास पे देखा था। इसके अलावा वी हैव इन विट्रो डीएनए एम्प्लीफिकेशन मेथड विच इज पॉलीमरेज चेन reaction. The fragments of DNA obtained, for example, from genomic DNA or DNA copied from the mRNA, which is known as cDNA, complementary DNA, can be amplified by PCR and cloned, inserted into another organism where the foreign DNA can be replicated and expressed. The effects of the protein produced product can then be studied, or in some cases, large quantities of the protein product can be obtained. In some cases means कि expression vector. So cloning vector में DNA amplify हो रहा है, expression vector में protein product ज़्यादा express हो रही है. In medicine, recombinant DNA techniques permit the production of specific proteins that are used for therapy or as vaccines. The techniques are also used to diagnose disease, to predict the risk of genetic disease, and to determine percentage or other types of relationships. They have already been used to treat the diseases using the gene therapy. The sequencing of the human genome has identified multiple areas of the genome that can be utilized for genetic analysis of the disease. The technique of gene editing, as exemplified by the CRISPR Cas system, has provided the technical knowledge to correct mutations in embryos and to enhance or knock out gene expression in animals. The use of this system has the potential to revolutionize the medical treatments in the future. So एक एस्पेक्ट यहाँ पे ये भी है कि ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अगर वहाँ पे कोई पता चलता है किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर का, तो उसको क्रिस्पर कास सिस्टम के थ्रू वहीं पे ही रेक्टिफाई किया जा सकता है. एंड दिस पर्टिकुलर अप्रोच कैन रेवोल्यूशनाइज द मेडिसिन regimes. So yesterday we studied the strategies for obtaining. इस पे अगर मैं इसको जस्ट गो थ्रू करूँ, वी हैव रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो एंजाइम को क्लीव करते हैं. फिगर 5.3 ए एंड बी, इसको देखते हैं इसमें क्या चीज़ है. इको आर वन, हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है. यस, इको आर वन प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स. ठीक है, ये दो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, डीएनए एक्स एंड डीएनए वाई, और जी डबल ए डबल टी सी. सीक्वेंस जो दरमियान में है उसमें जी और ए, और उसी के कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे जी और ए के दरमियान में ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव कर रहा है. फिर हमने क्या किया कि फ्रेगमेंट बेस पेयर एंड आर ज्वाइंड बाय द डीएनए लाइगेज. चाहे तो हम इसमें अपने रिक्वायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को इंसर्ट कर दें, या फिर वैसे ही उसको लाइगेट कर दें. So techniques for identifying the DNA sequences.
So, use of probes to detect specific DNA and RNA sequences. A probe has a single stranded DNA that can hybridize base pair with the complementary sequences of another single stranded polynucleotide composed of DNA and RNA. ठीक है, इस प्रॉपर्टी जो डीएनए में मौजूद होती है, डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, डीएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी मदद से हम एक प्रोब की मदद को यूज़ करते हुए हम एक अननोन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई एंड लोकेट कर सकते हैं. The probe must contain a label so that it can detect a complementary DNA and RNA. The label may be radioactive, so it can be detected by radiography, or a chemical that can be identified for example by fluorescence. ठीक है, जहाँ पे बाउंडिंग होगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, वहाँ पे उस चीज़ की बॉन्डिंग की आइडेंटिफिकेशन के लिए या तो हमारे पास रेडियोग्राफी हो या फिर केमिकल फ्लोरेसेंस की मदद से हम उसको डिटेक्ट कर सके. Gel electrophoresis separates the DNA chains of varying lengths. Polyacrylamide gel can be used to separate short DNA chains that differ in length by only one nucleotide. Agarose gels separate chains of larger size. सो जो मैंने बात की थी जेल की, जो एक मैट्रिक्स है जिससे डीएनए ने पास होना है, वहाँ पे हम एग्रोस जेल, एक शुगर कार्बोहाइड्रेट बेस्ड कंपाउंड है, तो उसकी जेल यूज़ होगी, तो वहाँ पे लार्जर फ्रेगमेंट्स की सेपरेशन रेजोल्यूशन हो सकती है, और पॉलीक्रोमेट जेल में वेरी स्मॉलर इवन वन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के डिफरेंस से भी हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज towards the electricity gradient. Because DNA contains negatively charged particles, phosphate groups, it will migrate in electric flow towards the positive electrode. ठीक है, which is I hope so anode. Uh, Shorter chains migrate more rapidly through the pores of the gel, so separation depends on the length. The DNA bands in the gel can be visualized by various techniques, including the staining the dyes by ethidium bromide, and radiography if the gel contains a radioactive compound. This technique is relatively lesser used. Label probes detect specific DNA sequences. ठीक है, इसमें हमारे पास ब्लॉटिंग एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं, कैन बी मेड यूजिंग दी माइक्रोसेलुलोज पेपर. इस पे तीन टाइप्स हैं, साउदर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न. साउदर्न प्लस प्रोड्यूस्ड विद रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब हाइब्रिडाइजेस विद द डीएनए ऑन नाइट्रोसेलुलोज. सो हाइब्रिडाइजेशन में हम हमारे पास अगर प्रोब डीएनए है और जो डिटेक्शन मॉलिक्यूल है, देन इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम साउदर्न ब्लॉट कहते हैं. और इसमें अगर हमारे पास डिटेक्शन मॉलिक्यूल आरएनए है तो हम इसको नॉर्दर्न ब्लॉट कहते हैं, और अगर प्रोटीन है तो हम इसको वेस्टर्न ब्लॉट कहते हैं. ये चीज़ याद रखने के लिए जस्ट मैंने एक इसमें अपने लिए अ, एक तरीका रखा था, विच वाज के साउदर्न एंड नॉर्दर्न, इन दोनों वर्ड्स में से जो लेटर आर है वो ज़्यादा बार इन नॉर्दर्न है. ठीक है, 2 टाइम्स. तो इसलिए नॉर्दर्न को में हम डिटेक्ट करते हैं आरएनए. तो यहाँ पे 2 आर है तो इसलिए आरएनए, और जो दूसरे वाला है साउदर्न, वो हमारे पास डीएनए हो जाता है. तो ये बिल्कुल अपोज़िट हमारे पास डायरेक्शंस हैं. जो तीसरी डायरेक्शन है इन दोनों के दरमियान, वो हमारे पास वेस्टर्न प्लॉट आ जाता है. डीएनए सीक्वेंसिंग बाय सेंगर डाइडिऑक्सी मेथड. अच्छा, वी हैव साउदर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न. यहाँ पे डीएनए आरएनए प्रोटीन और इनकी डिटेक्शन हो रही है.
सेंगर सीक्वेंसिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम गो थ्रू करते हैं। Okay. Okay. So dideoxynucleotides are added to solutions in which the DNA polymerase is catalyzing the polymerization of the DNA chain. Because a deoxynucleotide does not contain a 3' hydroxyl group, polymerization of the chain is terminated whenever a dideoxynucleotide is incorporated into the growing chain. Because the dideoxynucleotide competes with the normal nucleotides for incorporation into the growing chain, DNA chains of varying lengths are produced. The shortest chains are nearest to the 5' end of the DNA, which grows 5' to 3'. Okay, क्या कहते हैं? So, so we have dideoxy ATP. सो दिस इन पर्टिकुलर डायग्राम हमारे पास एक डीएनए टेम्पलेट है और उसकी इनॉग्रेशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डी डी ए टी पी है, उसके एडिशन से क्या हो रहा है कि ग्रोइंग चेन वहाँ पे रुक गई। ठीक है। सो जिस फ्रेगमेंट को हमने सीक्वेंस करना है उसको उसको हम सबसे पहले तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसको डीनेचर करेंगे, एंड देन पॉलीमरेज एंड अदर रेप्लिकेटिंग मशीनरी कंपोनेंट्स उसको उनको हम ऐड करेंगे, और साथ साथ हम नॉर्मल डी एन टी पीज एंड डाईडिऑक्सी एन टी पीज ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि रैंडमली डी एन टी पीज ऐड हो रहे हैं, डाई डी एन टी पीज ऐड हो रहे हैं, तो डी एन टी पीज जहाँ जहाँ ऐड होंगे वो तो पॉलीमराइजेशन बढ़ती जाएगी, लेकिन जहाँ पे डाई डिऑक्सी एन टी पी ऐड होगा तो वहाँ पे 3' पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा जो कि नेक्स्ट आने वाले न्यूक्लियोटाइड के 5' से बाइंड करेगा, तो इसलिए वहाँ पे जो उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट की जो रेप्लिकेशन है वो रुक जाएगी। सो अब हमारे ऑन रैंडम तकरीबन हर किस्म के लेंथ के डीएनए फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, और हर एक के जो 3' एंड है उस पे एक डाईडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, जिसके साथ अगर हम प्रोब अटैच कर देंगे तो वो हमें बता देगा इसकी लेंथ। सही है। ये 10 बेस पेयर, 15 बेस पेयर, 17 बेस पेयर का ये फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, और हर एक के एंड पे डी डी ए टी पी डी डी डिफरेंट हमारे पास आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरीके से हमारे पास हर न्यूक्लियोटाइड के हैं, और फिर हम इनको ऐड करवाते हैं। हमारे पास जो डायग्राम आती है उसको हम रीड करते हैं फ्रॉम 5' टू 3'। सो ये हैवियर फ्रेगमेंट A C G T
GTA। इस तरीके के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड नंबर 10 to 17 की रीडिंग हम कर पाते हैं। ठीक। The sequence of the growing chain can be read 5 prime to 3 prime from the bottom to the top of the gel on which the DNA chains are separated. The original limitation in Sanger sequencing was the speed. Improvements in sequencing technique have led to next generation sequencing, which causes sequencing of an entire genome in one day. The technique involves mechanical fractionation of the genome followed by rapid sequencing and alignment of these fragments. In this technique, many samples of DNA can be sequenced simultaneously. हम्म। सो यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की में डिफरेंट टेक्निक्स जो होती है उनमें से एक टेक्निक यहाँ पे है कि वी हैव सेल लेन्स जिसके ऊपर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाउंड है। ठीक है। और इनके अलावा इस पे एडाप्टर्स भी बाउंड है। फिर क्या किया जाता है, उन न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स जिनको हम सीक्वेंस करवाना चाह रहे हैं, और वो रैंडमली यहाँ पे इनमें बाइंड करके एक ब्रिज सी बना रहे हैं। अब अगेन इसको डीनेचुरेशन करेंगे और क्या होगा कि अब ये जो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स थे, ये एक एंड से डिटैच हो जाते हैं और वो पर्टिकुलर फ्रेगमेंट जिसने सीक्वेंस होना है वो इनके दरमियान में आ जाता है और इनके स्टार्टिंग और एंडिंग पे हमारे पास एडाप्टर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। नाउ डिफरेंट DTNTPs आर बीइंग एडेड एंड वो एक पॉलीमराइजेशन से स्टार्ट करेंगे और लेज़र की मदद से हम उन आने वाले न्यूक्लियोटाइड्स की डिटेक्शन करते जाएंगे। ये जस्ट एक है कि किस तरीके से हमने टोटली अनकन्वेंशनल वे में डीएनए सीक्वेंसिंग परफॉर्म की और इसमें हम मिलियंस ऑफ डिक्शंस को एट अ सिंगल टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। टेक्निक्स फॉर एम्पलीफाइंग द डीएनए सीक्वेंस।
Okay, so we have PCR, which is in vitro DNA amplification technique, and we have a cloning of DNA using the cloning vectors. Do we have the diagram of PCR? Yes, yes, इसको देखते हैं. So regions of DNA can be amplified. Stay strand 1 and strand 2. Initially हमारे पास 3 to 5, 5 to 3 ये particular region है जिसको हम amplify करना चाह रहे हैं. So what we did, we added the primers. ठीक है. एंड प्राइमर्स दोनों स्ट्रैंड्स के 3' पे की तरफ उन्होंने बाइंड किया है और वो पर्टिकुलर उन्होंने रीजन को एम्पलीफाई कर दिया है. सो एक ये रीजन, एक ये रीजन. नाउ अगेन डीनेचुरेशन. ओके, यहाँ से फिर इधर डीनेचुरेशन करके फिर दोबारा प्राइमर्स ऐड किए गए और अब हमारे पास स्ट्रैंड 1 स्ट्रैंड 2 इनिशियली ये था. और जो सिर्फ हम जिस जगह को एम्पलीफाई करना चाह रहे थे उसकी फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमारे पास कॉपीज़ अभी तक नहीं बनी. फिर यहाँ से हम साइकिल 3 में गए और डीनेचुरेशन करके प्राइमर्स ऐड किए तो यहाँ पे हमारे पास एक, दो, सिर्फ दो कॉपीज़ बनी हैं जो सिर्फ एम्प्लीकॉन की कॉपी है. इसी तरीके से हम जाते रहेंगे तो साइकिल्स 4 टू 2020 के बाद हमारे पास ये जो कॉपीज़ होगी 10 एक्सपोनेंट 6 कॉपीज़ हो जाएगी जो कि होती है 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 billion copies in just 20 cycles. Use of recombinant DNA techniques to detect polymorphism. सही, पॉलीमॉर्फिज्म को भी हमने एक बार डिस्कस किया था क्लास में कि म्यूटेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म में ये फ़र्क है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज़ एक्सेप्टेड म्यूटेशन. म्यूटेशन को हम जस्ट कहते हैं चेंजेस इन द डीएनए मॉलिक्यूल. लेकिन अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन को देखें, जस्ट हमारे क्लास जो फेलोज़ हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट में लोग हैं, हम सब भी ह्यूमंस हैं, हम सब के डीएनए में चेंज है डेफिनेटली. वही हमारे फिनोटाइप में चेंज आता है और हम सब के पास एक डिफरेंट फेशियल आइडेंटिटी है, एक्सेट्रा. तो क्या ये चीज़ म्यूटेशंस है? दीज आर द चेंजेस विच आर एक्सेप्टेड म्यूटेशंस. सो इनको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. फिर पॉलीमॉर्फिज्म ये भी होती है कि क्या किसी पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से कोई डिजीज़ कॉज हो रही है, तो वो डिजीज़ कॉजिंग जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं. Human differ in their genetic composition. Polymorphism variations in the DNA sequencing occur frequently in the genome, both in the coding and the non-coding regions. Point mutations causes the simplest type of polymorphism, but insertions and deletions of varying length also occur. Okay. सो पॉलीमॉर्फिज्म की डिटेक्शन की टेक्निक है कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म विच इज़ रिफ्लिप एनालिसिस है. इस पे क्या है, ओकेजनली अ म्यूटेशन अकर्स इन अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम cleavage site and that is within a tightly
linked to a gene. The enzyme can cleave the normal DNA at this site but not the mutant. Thus, two smaller restriction fragments will be obtained from the region of the normal DNA compared with only one larger fragment from the mutant. Figure 340. So, is this figure 340? Yes. So, reflect analysis में क्या है कि we have a gene which is normal and gene which is sickle cell anemic gene. एंड इसमें जो सीक्वेंस है कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है एडिनिन की जगह एक थाइमीन ऐड हो गया है अब ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है दैट इज आल्सो द रिकॉग्निशन साइट ऑफ ए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम MST2 ठीक है अब MST2 को जब हम ट्रीट करवाएंगे फ्रॉम विद द जीन ए सीक्वेंस तो वहाँ पे उसकी क्लीवेज हो जाएगी बट अगर टी आ गया तो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीव नहीं कर पाएगा सो जब हम इन दोनों की जल रंग करेंगे तो हमारे पास एक अफेक्टेड इंडिविजुअल है वी हैव द कैरियर वी हैव द नॉर्मल वी हैव द सिकल सेल तो इस तरीके से जो नॉर्मल है विच इज़ द थर्ड लाइन इसमें हमारे पास एक फ्रेगमेंट इधर आया और अफेक्टेड को हम चेक कर सकते हैं कि वो हमारे पास सिकल सेल कंट्रोल यहाँ पे मौजूद है Sometimes a mutation creates a restriction site that is not present or near the normal gene. In this case, two smaller restriction fragments will be obtained from the mutant and only one larger fragment from the normal. Normal human DNA has many regions that obtain a highly valuable number of tandem repeats (VNTRs). The number of repeats differ only from one individual to another and from uh, one allele to another. Restriction enzymes that cleave on the left and right flanks of the VNTRs produces DNA fragments of variable length. The length depends on the number of repeats that the DNA contains. The fragments produced by various restriction enzymes into number of different uh, loci can be used to identify individuals with an accuracy of a fingerprint. अच्छा डिफरेंट एनालिसिस के अलावा वी एन टी आर्स विंटर्स ये भी हमारे पास एक एनालिसिस होती है इसमें क्या होता है कि देर आर रीजन्स जिन पे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ट्रीट करें तो हमारे पास वेरिएबल नंबर ऑफ साइट्स बन जाती हैं तो इन वेरिएबल नंबर ऑफ साइट्स जो होती हैं ये विद इन एन इंडिविजुअल तो सेम रहती हैं बट अक्रॉस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये हमेशा डिफरेंट रहेंगी तो रिफ्लिप के अलावा एनालिसिस के अलावा ये विंटर एनालिसिस भी एक अल्टरनेट है टू क्रॉस चेक द रिजल्ट्स ऑफ रिफ्लिप एनालिसिस Therefore, a technique called DNA fingerprinting is used to determine the percentage of other gene relationships or to implicate suspects in criminal cases. 341.
Uh, so we have VNTRs and we have the restriction size of eco R1. तो eco R1 fragments produced from individual B. यहाँ पे हमारे पास कितने साइट्स बने हैं? एक 3 बेस पेयर का, 6 का, 9 का, 15 का, और यहाँ पे इंडिविजुअल सी, इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल बी, इंडिविजुअल सी को हमने ऐड करवा दिया है। ओके। Detection of sorry yes, detection of mutations by allele-specific oligonucleotide probes. Oligonucleotide probes synthesized that is complementary to a fragment of DNA that contains a mutation. A different probe is made for the normal DNA. If the mutant probe that binds to a sample of DNA. The sample of DNA contains from the mutant allele. If the normal probe binds, the sample contains DNA from a normal allele. If both probes bind, the sample contains DNA from both a mutant and a normal allele. That is, the person providing the DNA sample is a carrier of the mutation. ठीक है? होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, कैरियर, ये हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज माइक्रोबियल जेनेटिक्स में होपफुली पढ़ ली होंगी। तो इसमें डिफरेंट अलील्स हमारे पास होते हैं किसी पर्टिकुलर जीनोटाइप के, एंड देन उनका फिनोटाइप हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो इसमें म्यूटेंट एलील, नॉर्मल एलील और दोनों की एग्जिस्टेंस है, तो देन वी हैव द कैरियर सिचुएशन। सो टेस्टिंग फॉर म्यूटेशंस बाय पीसीआर, ये कैसे करते हैं? एलोगेनेटेड कॉम्प्लीमेंट्री टू द म्यूटेंट रीजन इज यूज्ड एज अ प्राइमर फॉर पीसीआर इफ द primer bind to the DNA sample, and if the sample contains the mutation, amplification of DNA occurs. The primer is extended. If the primer does not bind, extension does not occur. The DNA is normal. सो हम पर्टिकुलर रीजन को एम्पलीफाई करते हैं यूजिंग द प्राइमर और प्रोग्रामर उस म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करेगा, तो जिसकी वजह से वो डिजीज़ कॉज हो रही है। तो अब हमारे पास अगर जीन एम्पलीफाई हो जाएगी, डेट मीन्स के प्राइमर अनील हो चुका था अपनी म्यूटेटेड सीक्वेंस की वजह से, एंड देन वो जीन एम्पलीफाई हुई है। अदरवाइज अगर प्राइमर बाइंड नहीं कर सका तो हमारे पास जीन एम्पलीफाई नहीं होगी। In SNPs, we have been identified across the human genome as a result of the Human Genome Project. To be considered as a SNP, the base change must be present in 1% of the population.
SNPs are useful tools for mapping the disease via positional cloning and in forensic analysis in place of short tandem repeats and the winter analysis. Stringent hybridization conditions, which include the high temperature and low salt, are needed when analyzing for single base change between the DNA samples. So, alterations in the genetic composition of animals. If a gene from one organism is inserted into the fertilized egg, a transgenic animal can be produced. Such animals can be used for research and for other purposes, ranging from the production of human proteins in the milk of the transgenic sheep in the generation of larger and stronger species. The removal of disruption of gene knockout, can be used to develop strains of animals that lack the protein product of the gene. This effects of loss can of the protein can then be studied. So एनिमल्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम या तो न्यू एनिमल वेरिएंट्स को डेवलप कर सकते हैं या फिर जीन नॉकआउट की मदद से हम किसी पर्टिकुलर जीन या जीन्स के इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं. Mapping of human genome. The Human Genome Project has led to the sequencing of the human genome and the identification of numerous markers to the genome, such as the SNPs, and of approximately 25,000 genes in the human DNA. The project is now aimed into functional genomics, deducting uh, information about the function of DNA sequencing. The project is also addressing the ethical, legal, and social issues that may arise from the information obtained from the project. अच्छा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तकरीबन सन 2000 में ये के आसपास ही ये स्टार्ट होकर कंप्लीट हुआ था, जिसने आइडेंटिफाई किया कि ह्यूमन जीनोम में जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है उनमें कौन सी जीन किस जगह पे एग्जिस्ट करती है. ठीक है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था. एंड उसकी मदद से हमारे पास कई सारे रेफरेंस जीनोम्स हमने आइडेंटिफाई किए एंड देन वी कैन अप्लाई फंक्शनल जीनोमिक्स और पर्सनलाइज्ड जीनोमिक्स, जिसमें हम इंडिविजुअल जीनोम से हम फिनोटाइप आइडेंटिफाई कर सकते हो. ओके, सो जीन थेरेपी में क्या है कि अल्टीमेटली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विल बी यूज टू ट्रीट द जेनेटिक डिजीजेस. ऑलरेडी सम डिजीजेस, एग्जांपल adenosine deaminase deficiency, have uh, responded to effects to introduce normal genes into the individuals with the
defective genes, prevention of adverse effects of immune rejection, and promotion of long term expression of the transgenes are areas of active research. क्लिनिकल रिसर्च वाला जो सेगमेंट है क्लिनिकल कोरिलेट्स ये जस्ट फॉर रीडिंग रेफरेंस है. देन वी हैव द प्रोटियोमिक्स, द आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ऑल प्रोटीन्स एक्सप्रेस्ड बाय अ गिवन सेल अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस comprises the field of proteomics. The technique utilized in proteomics, which is most important, is two-dimensional gel electrophoresis and mass spectrometry. Identification of protein fragments are sensitive enough to allow the comparisons between different but related cell types, such as a hepatomas cell and a normal liver cell, and the identification of proteins that differ in expression between the same samples being analyzed. So proteomics में क्या होता है कि we know that एक single gene defect is not always the case. हमारे पास मल्टीपल जीन डिफेक्ट्स भी किसी खास कोरिलेशन किसी खास फिनोटाइप की तरफ ले जाते हैं, और इनके बारे में देखना कि कौन से जीन में म्यूटेशन है, कौन सी जीन नहीं बन रही, कौन सी जीन कम बन रही है, कौन से जीन ये प्रोटीन ज़्यादा बन रही है. तो इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें एक होल सेल प्रोटियोम एनालिसिस करनी पड़ती है. जैसे जीनोम है टोटल सेट ऑफ जीन्स इन द सेल, वैसे ही प्रोटियोम है टोटल सेट ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस. तो प्रोटियोम एनालिसिस करके हम पूरे सेल का जायज़ा ले सकते हैं. इसमें जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, और फिर इसके बाद मास स्पेक्ट्रोमेट्री, उन प्रोटीन्स का साइज को आइडेंटिफाई किया जाता है. Then we have the microarrays. Screening of thousands of genes simultaneous to determine which alleles of these genes are present in samples obtained from the patients, or to compare the RNA expression patterns of two different samples. One example of a microarray is chips to aid in the diagnosis of infectious diseases. The chip contains more than 20,000 distinct oligonucleotides in ordered array in the chip that cor- correspond to the vertebrate viruses, bacteria, fungi, and parasite. Patient samples are used as a source of RNA, which is converted to complementary DNA and used as a probe to bind to the DNA sequencing in the chip. Positive hybridization will identify the organisms responsible for the patient's symptoms. क्या कहते हैं कि माइक्रो अरे में एक प्लेटफॉर्म है जिस पे 20,000 या इससे भी कई ज़्यादा हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट्स लगे होते हैं, और वो कंप्राइजेस होते हैं डिफरेंट पैथोजेंस की सिग्नेचर सीक्वेंसिंग पे. तो पेशेंट सैंपल लिया जाता है, उसमें मौजूद जो आरएनए है उसको कन्वर्ट किया जाता है सी डी एन ए, एंड देन चेक किया जाता है ऑफ द डिजीज कंडीशन ऑफ द पेशेंट. So we have CRISPR-Cas over the past few years a revolutionary new technique based on a rudimentary immune system found in the microbes and archaea has enabled the scientists to knock out or insert or targeted genes. In the case, the technique is known as the CRISPR-Cas clustered regularly interspersed short palindromic sequence and the CRISPR associated system or sequencing, which is the basics, which are the nucleases and the helicases. ठीक है. Scientists have used this system to successfully alter genes in both cultured cells and human embryos, either by knocking them or by replacing the genes with the
modified ones. In this case, the science has occupied the societal, legal, and ethical issues associated with the gene editing, which will need to be addressed in the immediate future. So that concludes the topic. Clinical correlates आप देख लीजिएगा एंड होपफुली हम इन टॉपिक्स को एक बार ऑन कैंपस क्लासेस में भी रिव्यू करेंगे बट it's more good to have these in a recorded form. Let me mark the attendance. All right, attendance have been marked and